Okay, let's start exercise 1.1. So students, in your fair copy, write down exercise 1.1 chapter number 1 and start question number 1. Question number 1 is use both tabular and set builder form to specify the following set. Number 1 or A is the set of positive integers greater than 2 and less than 6. This is the descriptive method. ठीक है, और हमें क्या करना है, हमें इसे टेबुलर फॉर्म में लिखना है. नाउ सी, आपके पास क्या लिखा हुआ है, आपके पास लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 आपने मेंशन किया, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, ए लिखा, सेट इज़ द पॉजिटिव अ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीगर्स ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 6. ठीक है, टी एफ शोज़ टेबुलर फॉर्म. टेबुलर फॉर्म में हमने क्या किया, इसको डिजिट से शो किया. पॉजिटिव इंटीगर्स ग्रेटर देन 2 is 3, 4, but less than 6 is 3, 4 and 5. So we write 3, 4, 5. ठीक है, all these members enclosed in a curly bracket. ठीक है, सेम आपके पास जो भी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में सेट था उसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा, शोज बाय द सिंबल. सो हमने क्या लिखा, x such that x belongs to positive integers, z shows positive integers, and अब आपके पास x क्या चीज़ है, it is lesser than 2 and greater than 6. देखिए बेटा, ये जो साइन है आपके पास यहाँ पर, जहाँ पर ये साइन ओपन होगा इसका मतलब वो ग्रेटर साइड होगी, और जहाँ ये साइन क्लोज हो इसका मतलब क्या है, वो लेसर साइड होगी. इसका मतलब x से छोटा है, 2 इज़ लेसर देन x. ठीक है, and 6 is greater than x. So we can say that x such that x belongs to positive integers and x is greater than, ये greater की तरफ यानी इस तरफ ओपन है तो x greater है 2 से, x is greater than 2 and lesser than 6. and curly bracket close करेंगे because set, जब हमारे पास set complete हो जाएगा we close the curly bracket. Second is the positive integers less than 20 that are divisible by 5. So क्या करेंगे, टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे, less than 20 में only 3 elements which are divisible by 5. This is 5, 10 and 15. So in tabular form आप टेबल बनाएंगे, सेट बनाएंगे and write down 5, 10 and 15. and set builder form में हम क्या करेंगे, we write x such that x belongs to positive integers and x is lesser than 20 and divisible by 5. ठीक है, सी कैसे लिखे हमने, x such that x belongs to positive integers and x is lesser than 20 and divisible by 5. ठीक है, similarly a set of natural numbers between 4 and 12. so natural number set में आपके पास क्या क्या आएंगे, between 4 and 12 is 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11. so you may write it in tabular form 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. and in set builder form, ठीक है, सेट है नेचुरल नंबर का, सो वी कैन राइट इट x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x is greater than 4 and lesser than 12. okay, then D is a set of first 6 positive prime numbers. so first 6 positive prime numbers क्या हैं आपके पास, ये आपके पास हैं first 6 prime numbers हैं आपके पास. Now see question number 2. Question number 2 is which of the following are the null set. okay, तो हमें ये बताना है कि इनमें से कि ऐसे कौन से सेट हैं जिनके ज़ीरो एलिमेंट हैं, जिनका कोई एलिमेंट नहीं बन सकता, वो नल सेट होंगे. ओके, लेट्स सी, आपके पास लिखा हुआ है x such that x is a letter before a in English alphabet. it means there is no letter before a in English alphabet. it means a is a null set. तो हम लिखेंगे a is a null set. ठीक है, now see b क्या लिखा हुआ है, x such that x plus 5 is equal to 5. now चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं. अगर आपके पास लिखा हुआ है x such that x
इज़ इक्वल टू 5, इसका मतलब क्या है कि x प्लस 5 इज़ इक्वल टू 5, x इज़ इक्वल टू दिस प्लस 5 यहाँ शिफ्ट होगा तो आपके पास हो जाएगा 5 माइनस 5, एंड 5 माइनस 5 करेंगे तो x इज़ इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, आपके पास जो सेट है वो इट कंटेन एलिमेंट 0। इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो सेट का एलिमेंट है वो क्या है, 0। इसका मतलब सेट कंटेन वन एलिमेंट, दिस इज़ अ सिंगलटन सेट, दिस इज़ नॉट नल सेट, सो वी कैन राइट इट, दिस इज़ B इज़ नॉट null set. Now see x such that x is less than 7 and greater than 8, तो कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं है जो 7 से छोटा और 8 से बड़ा हो, इसका मतलब क्या है, दिस इज़ अ null set. x such that x is past president of Pakistan who was a woman, so there is no women became president of Pakistan, therefore D is also a null set. Let's see question number 3. Question number 3 में आपके पास क्या लिखा हुआ है कि you have to write finite or infinite against the set. Which of these sets are finite, which of these sets are infinite? So the month of a year can be countable, इसका मतलब this is finite set. A day in a year बिल्कुल countable है, finite set है. The student in your class, finite. This is the set of even number 2, 4, 6, 8, 10 and onwards, इसका मतलब क्या है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते, this is infinite. A set of lines passing through a point, ठीक है, indefinite lines can be passed through a point, किसी भी पॉइंट के ऊपर से हम बहुत सारी लाइंस को पास कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है, this is infinite set. The set of line passing through two given points, for example this is point 1 and point 2, अब हमारे पास एक ही लाइन पास हो रही है ना, इसका मतलब क्या है, द सेट ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स, इसका मतलब दिस इज़ अ फाइनाइट सेट. अच्छा ओके, अब क्या करें हम, अभी आफ्टर डूइंग क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 वी आर मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, फिर इसके बाद बाकी के क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 12 में आपके पास लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट, ठीक है. सो अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा था कि व्हाट आर द इक्विवेलेंट सेट. इक्विवेलेंट सेट आर दो सेट्स विच हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, यानी उनके नेचर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो सिमिलर नहीं होते, बट द नंबर ऑफ एलिमेंट इज़ सिमिलर एंड दे आर 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस. तो अब हमने क्या किया, उन्होंने ए में हमें गिवन है ए बी सी, बी में आपके पास है 1, 2, 3. सो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इज़ 3, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी इज़ 3. इसका मतलब बोथ द एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स. हमने इसकी 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस चेक करेंगे और बताएंगे कि ये आपके पास इक्विवेलेंट है या नहीं. इसका मतलब ए जो है वो इक्विवेलेंट सेट है, ठीक है. सिमिलरली बी और सी को भी आप सॉल्व करेंगे अपनी कॉपी में और शो करेंगे कि इफ़ दे आर 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस देन दे आर इक्विवेलेंट, और अगर ये इक्विवेलेंट नहीं होंगे तो यू मे राइट कि द सेट ए इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू सेट बी.